Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is another part of quality. Quality जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो उसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी है कि क्वालिटी किसको कहते हैं। यानी क्वालिटी मीन्स कि क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम भी क्वालिटी ढूंढते हैं, जिससे हम राइटर ने जॉन गिल्सवर्दी ने ये टॉपिक एक ऐसी ही क्वालिटी के बारे में दिया है। क्वालिटी मुंसिफ कहता है कि मैं एक जब मैं 14 साल का था तो मैं एक जूते बनाने वाले को जानता था जो मेरे बाप के लिए जूता बनाता था। तो वो दो भाई थे, तो उन्होंने एक दो दुकानों का एक दुकान बनाया था जिसका नाम उन्होंने गेस्लर ब्रदर्स रखा था। तो ये बूट कैसे बनाते थे, इनकी क्वालिटी, ये हमारे राइटर का सिर्फ यह कहना है कि क्वालिटी किसको कहते हैं। तो क्वालिटी के लिए उन्होंने वो तभी बूट बनाते थे जब उनके पास कोई ऑर्डर मिलता था। दोनों भाई बहुत ही दिल लगा के दिलचस्प अंदाज से अपना काम सर अंजाम देते थे। तो क्या बजाते खुद खरीद गए चमड़े से जूते बनाया करता था। उसके ज़रिए बनाए गए जूते बढ़िया किस्म के हुआ करते थे। वो अपने सामने बूट की आत्मा देखा करता था। तो ये था हमारा टॉपिक। तो कल हमने पढ़ा कि एक यहाँ तक कि गेस्लर ने बहुत ही असरअंदाज, बहुत ही इस हमारे जॉन गिल्सवर्दी ने ये कहा कि ये बताओ कि ये आप कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक फ्रेज उन्होंने दिया, इट इज़ एन ऑडिट, यानी एक फन है। इट्स एन आर्ट, ये एक फन है। तो आज हम ये पैरा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, आपकी टेक्स्ट से लिया गया है। तो टेक्स्ट पेज नंबर 34 है ये। Himself he was a little as if made from leather, with his yellow, crackly reddish hair and pad and neat flutes slanting down in his crease to the corner of his mouth, and his good and one-tuned voice, for leather is a sardonic substance and shadow of the purpose. And that was the character of his face, save that his eyes very gravely had in them the simple gravity of one scarcely possessed by the ideal. His elder brother was so very like him, though watery parallel in every way, with a great industry, that sometimes in early days I was not quite sure of him until the interview was over. Then I knew that if it was he, if the words I will ask my brother had not been spoken, and that if they had, it was his elder brother.
When one very old and then upbuilds one somehow never end up with Gessler brothers. It would not have seemed becoming to go in there and stretch out was food to that blue iron spectacled glance owning him more than say to Pierre just the comfortable reassurance that one was still his client. For it was not possible to go to him very often, his boots slowly trembly having something beyond the temporary, same as it were, a sense of boots stretching into them. One went in not as into most shops in the mood of please serve me and restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waiting for there was never anybody there soon over the top edge of that sort of while rather dark and smelling soothingly of leather, which formed the shop, there would be seen his face or that of his elder brother, hearing down a rattler sound and the tip-top of vast silvers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one on without coat, a little man in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots, or like an owl surprised in daylight and annoyed at this interruption. तो इनमें से क्या मुंसफ कह रहा है? तो जब ये लोग क्या करते थे, ये बजाते खुद खरीदे गए चमड़े से जूता बनाया करते थे, इसलिए इसके ज़रिए ये बनाए गए जूते बढ़िया किस्म के हुआ करते थे। वो अपने सामने बूट को आत्मा देखा करते थे। जब भी कोई बोट बनाना चाहता था तो ये जो भी क्लाइंट उनके पास जाता था तो ये मतलब बूट को बनाने में अपनी मतलब उस बूट की आत्मा को देखकर बूट बनाया करते थे। एक दिन मुंसफ जूता बनाने का ऑर्डर गेस्लर को देने लगा। उसने उससे दरियाफ्त करना चाहा कि अगर जूता बनाने का काम मुश्किल या दुश्वार था। गेस्लर ने कहा कि अगर दुश्वार था, गेस्लर ने कहने लगा कि जूते बनाना एक फ़न है, इट इज़ एन आर्ट। गेस्लर बजाज खुद चमड़े का बना दिखाई देता था। उससे बाल और दाढ़ी, क्योंकि उसकी दाढ़ी और उसके बाल उसकी लाल दिखाई देती थी और उसकी आंखें भूरी नीली थी। उसमें एक जैसा ही था। मुंसफ के लिए छोटे भाई और बड़े भाई में फ़र्क पाना मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों भाई एक जैसे थे, मगर एक अल्फाज पर ये कहते हैं कि हमारे राइटर कहते हैं कि एक अल्फाज पर जो हम जिससे हम इनकी डिफरेंस करते थे, क्योंकि छोटा भाई कभी नहीं कहता था, क्या करता था कि अपने बड़े भाई से पूछूंगा। बड़ा भाई हमेशा ये कहता था कि मैं अपने भाई से पूछूंगा। तो दूसरा ये कि ये हर एक बस इसी से ये पहचाने जाते थे। गेस्लर के बनाए हुए जूते बहुत टिकाऊ हुआ करते थे। वो पायदार भी होते थे,
इसलिए नए जूते बनवाने के लिए उसके पास बार बार नहीं जाना पड़ता था। ये ऐसे बूट्स बनाते थे कि बार बार इस कंफर्टेबल, यानी इसके बाद इसके पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे ये बनाया करता था बूट्स। अच्छा, इसके बाद ये अपनी, यानी जो भी इसकी शॉप में जाता था, वन वन वेंट इन नॉट एज इन टू द मोस्ट शॉप इन द मूड ऑफ प्लीज सेव मी एंड लेट मी गो, बट रेस्टफुली एज वन इंटर्स ए चर्च। यानी ऐसा इन्होंने ये दुकान पर इस तरह बैठते थे कि जैसे कि जब भी कोई वहाँ जाता था, जिस तरह एक मुकद्दस जगह पाक जगह पे जाते थे लोग, तो उसी तरह इनको भी, मतलब इनकी जगहों पर, इनकी इस दुकान पर जाया करते थे लोग। जब कोई ग्राहक जूते बनाने के लिए गैसल की दुकान पर जाता तो उसे जिस का इंतज़ार करना पड़ना था, वो बड़े इत्मीनान से ग्राहक की तरफ पूरी तवज्जो के साथ उस बड़े इत्मीनान के साथ ग्राहक को टाइम देता था। वो बगैर कोट के होता था, वो चमड़े का एप्रन पहनता था और से बूटों के खाबों से जगा कर उसे वहां खड़ा कर दिया। वो उल्लू की मानद दिखानी, जिस तरह owl, like an owl, surprised in daylight and night at this, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इन ग्राहकों को किस तरह समझते थे कि जैसे कि ये मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ग्राहकों को मतलब पूरा इत्मीनान हो जाता था कि मेरा बूट जो मैं भी जो मुझे क्वालिटी चाहिए वो बढ़िया क्वालिटी यहीं से एक बार मनसुख की दुकान पर आ गया और उसने गैसल से चमड़े के लिए रूसी बूट बनाना। तो ये ऐसे, यानी इसके लिए इबादत थी। वो अपने आप को ऐसे समझने के लिए बहुत ही खुश हो जाता था कि कैसे इन्होंने, मतलब ये मुतमईन करते थे किनको, अपने ग्राहकों को। The writer says that once the author happened to walk into the shop of Guest Brothers, he was wearing a pair of boots brought in an emergency at some large famous. तो इन्होंने ये ऐसे, यानी हमारे राइटर जो हैं, तो ये इसीलिए क्वालिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी किसको कहते हैं। द शूज़ मेक्स बाय कैस्टल वर वेरी ड्यूरेबल, दे लास्टेड a long time, so it was not possible to go to him very often. One went to Gessler's shop as one went to church. One went to, जो भी इसकी दुकान में जाता था वो ये समझता था कि मैं एक चर्च, यानी मंदिर या पाक जगह पे, मुकद्दस जगह पे पहुंचा। When a customer went to Gessler's Brothers shop for placing an order for making shoes, wait for Mr. Gessler. जो भी जाता था उसको इंतज़ार करना पड़ता था ताकि जब भी गेस्लर या उसको मौका मिले तो उसकी पूरी तरह से मेजरमेंट ले, ताकि इसको बार बार यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े।
he would slowly come to attend the customer. जो भी हमारा टॉपिक है तो यही है कि he would slowly, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, slowly come to attend the customer. He would stand before the customer without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned round, जो पूरी तरह से बैंड हो जाता था। ऐसा ये ऐसे ऐसे मतलब खुद ऐसे कपड़े पहनते थे कि जिसमें इसको कोई दिक्कत ना हो झुकने में या कस्टमर के सामने आने में। He seemed to have seen awakened for a dream of boots. He would also look like an owl. Once the writer went to his shop and तो ये थी हमारी आज का लेसन। तो इंशाल्लाह आइंदा हम तीसरा टॉपिक इस पर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।